بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز اینڈ لرنر. ویلکم ٹو مائی چینل صدائے حق 02. آئیے آج ہم حدیث نمبر 23 کا آغاز کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اس پر ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المعرور قال لقیت ابا ذر بالربزہ وعلیہ حلہ وعلی غلامہ حلہ فسألتہ عن ذلک فقال انی سأببت رجلا فعیرته بأمیہ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر عیرته بأمیہ انک امرؤ فیک جاہلیہ اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل ویلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم وما یغلبہم فإن کلفتموہم فعینوہم. Narrated Al-Ma'rur رضی اللہ تعالیٰ عنہ. At Ar-Rabada I met Abu Zar رضی اللہ تعالیٰ عنہ who was wearing a cloak and his slave too was wearing similar one. I asked about the reason for it. He replied, I abused a person by calling his mother with bad names. The Prophet ﷺ said to me, Abu Zar, did you abuse him by calling his mother with bad names? You still have some characteristics of ignorance. Your slaves are your brothers, and Allah has put them under your command. So, whoever has a brother under his command should feed him of what he eats and dress him of what he wears. Do not ask them to do things beyond their capacity, and if you do so, then help them. Translation in Urdu. مامور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربضہ میں ملا، جو کہ ایک جوڑا وہ پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی ویسا ہی جوڑا پہنے ہوئے تھا. میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی تھی، یعنی ماں کی گالی دی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانے جاہلیت کا اثر باقی ہے. یاد رکھو ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے، وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم بھی ان کی مدد کرو. صحیح البخاری والیوم 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 23. تو آئیے اس حدیث کی روشنی میں ذرا ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کرنے کے قابل ہو سکیں. تو اس کی اہم بات یہ ہے کہ پہلی اہم بات تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو بھائی کہا، یعنی بھائی جیسا بھی نہیں کہا بلکہ بھائی ہی کہا ہے. تو بھائی کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرنا ہوگا. تو یقیناً غلام جو ہیں وہ اس وقت یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائیوں کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کر کے واضح نصیحت کر کے مسلمانوں کو ان کا حق بتا دیا ہوگا، تبھی آپ نے یہاں پر بھائی کی مثال دی ہے. تو غلام تو یقیناً ہمیں اپنے اب غلام ہمارے معاشرے میں تو اب غلام کا دور نہیں رہا ہے. اسلام کی برکت سے اسلام نے آتے ہی غلاموں کو غلامی کو ختم کیا اور انسان کے غلام بننے کو ختم کیا، تو اب رہ گئے ہیں ملازمین. تو بے شک ہمیں اپنے ملازمین کے ساتھ جو ہے وہ وہی سلوک کرنا چاہیے جو ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے جیسا کھلانا، اپنے جیسا پہنانا اور اپنے جیسے حال میں ان کو رکھنے کی کوشش کرنا، بھاری کام میں ان کی مدد دلانا. بے شک لیکن
उन मुलाज़मीन का तो एक वक़्त फिर हमसे पीछा छूट जाएगा, वो किसी और के मुलाज़िम हो जाएँगे, या अल्लाह उनको मुलाज़मत से ही बचा लेगा और वो खुद किसी काबिल हो जाएँगे। लेकिन इस हदीस की रोशनी में अगर हम अपने भाइयों का जायज़ा लें, हम अपने सलूक का, तो भाई का तो हमसे पीछा उस वक़्त तक नहीं छूट सकता कि वो तो मौत तक के साथी हैं। तो कितनी बड़ी ज़िम्मेदारी है भाई की हमारे ऊपर। तो हम अपनी ज़ात से ही इस मुहासबे को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हर भलाई को पहले अपने ऊपर से ही शुरू करना पड़ता है। हमें अपनी ज़ात से शुरू करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा वो कहाँ हैं, हमारे उनके हाल में कितना फ़र्क है। मगर अक्सर तो हमारा तो यही हाल है कि हमारा नफ्स तो ये कहकर हमें मुतमईन कर देता है और बहुत सारे बहाने ढूँढ लेता है कि हम जो अब आज बेहतर हाल में हैं, तो ये हमारी मेहनत है और उनका हाल उनकी नाअहली की वजह से है। और अक्सर तो हमारी मसरूफ़ियात जो हमने इतनी बढ़ा ली हैं और हमारी बेइज़्ज़ती की वजह से हमें जो है उनका हाल पूछने का वक़्त नहीं मिल पाता। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके ये फ़र्क इतना बढ़ जाता है कि बाद में तो फिर हमारे बच्चे भी, अगर हम बहुत अच्छे हाल में चले गए और वो ना आ सके, तो फिर अपने हल्के में तारुफ़ कराने से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बेशक अपना-अपना मुक़द्दर है सब हर इंसान का, लेकिन हमारी कोशिश कितनी है, इसका तो हमें रोज़े हशर में ज़रूर जवाब देना होगा। लेकिन ये कि हमने अपने भाई के हालात अच्छे हो जाएँ, इसमें कितना हिस्सा डाला, तो ये तो हमसे ज़रूर पूछा जाएगा। कितनी दफ़ा उसके दुःख भरे हालात के लिए हमने हाथ उठाए दुआ के लिए, कितनी हमने ऐसी माली मदद कर दी कि वो आगे माँगने से बच जाए। और अगर हमें करनी भी पड़ गई, तो कभी रिश्तेदारों की तो वो ना चाहते भी मदद करनी पड़ जाती है, वो खुद हमारे घर के चक्कर लगाने लगते हैं, तो हमें पड़ जाती है मदद करनी। तो हम ये देखना हम तंग तो नहीं आ गए कि बस हमने बहुत कर दिया और हम ही रह गए हैं और हम कब तक करेंगे। और ये हम भूल जाते हैं कि हमारी और उसकी रिश्तेदारी जो है वो एक दफ़ा दो दफ़ा करने की नहीं है, बल्कि हमारी और उसकी मौत पर ही ये रिश्तेदारी ख़त्म होगी और फिर हम जैसा बीज बोकर जाएंगे वैसे ही पौधे निकलेंगे। दरअसल जब भाई भाई की मदद कर देता है और मसाइल घर ही में हल हो जाते हैं, तो फिर माशरा खुद ब खुद बेहतरी की तरफ चले जाता है, सच्चे और खरे लोग बाकी रह जाते हैं। कुरान करीम ने हमारी हर चीज़ खैर का हकदार जो है वो वालिदैन के बाद अक़रबा को करार दिया है, और हमने क्या किया, हमने अक़रबा का तर्जुमा रिश्तेदार कर दिया, और ये सही नहीं है। बल्कि वालिदैन के बाद बहन भाई पहले नंबर के अक़रबा हैं, यानी सबसे करीबी हैं, जिनका हक अदा करके अल्लाह तो खुश होगा ही और अल्लाह की पकड़ से तो हम बचेंगे ही। वालिदैन से ज़्यादा खुशी किसी को भी नहीं हो सकती बहन भाइयों की मदद करने से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हर खैर का सबसे पहले हकदार अपने अक़रबा को ठहराया और अपनी हर खैर उन तक पहुँचाई। तो हमें भी ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हर शख़्स अपनी मदद अपने बहन भाइयों तक, यानी खून के रिश्तों तक, और फिर करीबी रिश्तों यानी कि जो उनके करीब रहते हैं, उनके घर में और फिर उनके महल्ले में और उनके बराबर में। तो अपने करीबी लोगों की मदद अगर कर दी जाए तो माशरे में अमन खुद ब खुद कायम हो जाएगा। बस इसके लिए थोड़ा सा पीछे आना होता है, थोड़ा सा अपने हिर्स हवस, झूठी शान, और दरअसल हम जो नहीं हैं वो बताना चाह रहे हैं, हम जो नहीं हैं वो दिखाना चाह रहे हैं, तो इससे पीछे आना पड़ता है। तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है। और मज़ीद ये कि हम जो कौमें अपना ख़ानदानी निज़ाम जड़ से ख़त्म कर चुकी हैं, उनको हमने अपना आइडियल बना लिया है और उनकी नक्काली में ही हम अपनी तरक्की ढूँढ रहे हैं, तो कहाँ से हमें खैर नसीब होगी। तो इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का अख्ताम करते हैं। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वज्तनाबा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।